Welcome children. Today we'll start a new chapter, photosynthesis in higher plants. This is chapter 13 of class 11th biology. And this is the topic related to plant physiology. What is physiology? Physiology is the study of all the processes taking place in a living system, or we can say the function of different parts of our body is known as physiology. So what we'll discuss in this chapter, let me first tell you, we will discuss the introductory part of the photosynthesis, then we will discuss discovery related to photosynthesis, then what are the raw materials, the chemical equation of photosynthesis, then the different phases of photosynthesis and how the ATP is synthesized during photosynthesis, the light reaction and dark reaction, then the C4 and C3 plants, and at the end we'll discuss the factors affecting photosynthesis. So we'll be discussing this chapter in 7 sessions. So today is the first session of this chapter and we are going to discuss the introduction and discovery related to photosynthesis. So let us start our discussion. You know that children, the autotrophic nutrition is found only in plants and the green algae, and all other organisms, those who depend upon the green plants for their food, are called heterotrophs. And the plants are autotrophic because they can carry out photosynthesis, which is a physico-chemical process during which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds. Means the source of energy for photosynthesis is the light energy or the radiant energy, and this radiant energy is converted into chemical energy by the process of photosynthesis in the green plants. That's why the ultimate source of energy for all living organisms is sunlight. And the use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth. And this photosynthesis is very important due to two reasons. So what are these two reasons? It is the primary source of all food on earth, because the plant synthesizes the food, then other animals or other organisms depends on plant for their food. So it is the primary source of all food on earth. The second is, it is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by the green plants. And you know children that for respiration all living organisms require oxygen. So this oxygen level is maintained on the earth or in the atmosphere due to the green plants, because the green plants during photosynthesis release oxygen. So the photosynthesis is important due to two reasons. What are these two reasons? One is for synthesizing the food, other is for releasing the oxygen. So what are the raw materials required for photosynthesis? Just at a glance, let us see. The raw materials are, as I said you, that radiant energy or the sunlight. You can see the radiant energy is the raw material. Then what are the two other raw materials? The carbon dioxide, which is received by the plant from the atmosphere. Then water, that is absorbed by the root from the soil. And what are the outputs? The outputs are the oxygen and carbohydrates and little amount of water. So oxygen and carbohydrate are the major outputs.
So the carbohydrate is the food and oxygen is the air, or the oxygen is the gas that is required for respiration of all living organisms. So now we'll discuss the some of the experiments how by which the scientists show the requirements, various requirements for photosynthesis. So our first experiment is to experiment to show necessity of chlorophyll for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए सबको मालूम है कि क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन प्लांट ही क्यों आपका फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ग्रीन एल्गी में भी आपका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन हमको ये प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की जरूरत है। सो हियर विल डिस्कस such type of experiment to prove the other requirements for photosynthesis also. So let us first take the necessity or requirement of chlorophyll for photosynthesis. The procedure is like this. Take a potted plant with variegated leaves. पॉट में एक प्लांट लीजिए जिसमें कि ऐसा प्लांट जिसमें कि वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीफ मतलब क्या है, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे क्रोटन प्लांट्स, देयर लीव्स आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज द लीव्स आर हैविंग ग्रीन, रेड, ब्राउन, येलो पैचेस। इसका मतलब है लीफ में कुछ हिस्सों में क्लोरोफिल होता है और कुछ हिस्सों में क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट को पहले हमको डीस्टार्च करना है। डीस्टार्च मतलब क्या है, जब ये प्लांट सन रे के नीचे था, सनलाइट में था, तब ये फोटोसिंथेसिस करता था। सो ये आपका स्टार्च सिंथेसिस कर चुका है। तो लीफ में स्टार्च थे, अभी ये स्टार्च धीरे धीरे प्लांट यूज करेगा। अगर हम इसको अंधेरे में रख देंगे 3-4 दिन तक, तो क्या होगा, लीफ में जितने सारे स्टार्च है वो सारे स्टार्च प्लांट यूज कर लेगा, जिसके वजह से लीफ में और कोई स्टार्च नहीं रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड डीस्टार्चिंग ऑफ द लीफ और द प्लांट। ठीक है, तो इस तरह हम लीफ को डिस्टार्च कर सकते हैं, जो जिसके वजह से स्टार्च लीफ से प्लांट का डिफरेंट हिस्सों में चला जाएगा। ठीक है, अभी हम अंधेरे में 3-4 दिन रखने के बाद प्लांट डिस्टार्च हो चुका है। अभी इस प्लांट को हम लेकर रखेंगे सनलाइट के नीचे, कुछ घंटे रखेंगे। तो जब सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, अभी हमको प्रूव करना है कि क्लोरोफिल की जरूरत है। तो क्लोरोफिल कुछ हिस्सों में है, कुछ हिस्सों में नहीं है। हमने जब सनलाइट के नीचे रख दिया प्लांट को, अभी उसमें फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, फिर से आपका स्टार्च सिंथेसिस होने लगेगा। इसके बाद हम करेंगे आयोडीन टेस्ट। कुछ घंटों तक सनलाइट के नीचे प्लांट को रखने के बाद हम आयोडीन टेस्ट करेंगे उसका लीव्स का। तो आयोडीन टेस्ट कैसे की जाती है मैं आपको बता देती हूँ। जो वेरीगेटेड लीफ, जिसमें कि कुछ हिस्सों में क्लोरोफिल था, कुछ हिस्सों में क्लोरोफिल नहीं था, वैसे लीफ को डिस्टार्च करने के बाद फिर उसको सनलाइट में रखने के बाद हम ऐसे एक लीफ को ले लेंगे, प्लांट से सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम उसको बॉइलिंग वाटर में 30 सेकेंड तक डीप करेंगे। उसके बाद हम उसको अल्कोहल में रख के उसको बॉईल कर लेंगे। तो अल्कोहल को हम डायरेक्टली तो बॉईल नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे आप देख सकते हो, ये पिक्चर 2 में कैसे दिया हुआ है। बॉइलिंग वाटर लेना है, वाटर को बॉईल करना है और उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल रख के उसके अंदर लीफ को डीप करना है। तो ये लीफ डीप करने का रीजन क्या है, लीफ को अल्कोहल में बॉईल करने से उसमें जितने क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल सारे निकल जाते हैं अल्कोहल के द्वारा, अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अभी लीफ में कोई क्लोरोफिल नहीं रहेगा। उसके बाद हम उस लीफ को फिर बॉइलिंग वाटर में डीप कर देंगे
ताकि उसमें एकदम से कोई क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं रहेगा। अभी आप देख सकते हैं 4th पिक्चर में पूरा लीफ व्हाइट हो चुका है, इसमें आपका क्लोरोफिल पिगमेंट कहीं भी रहने का नामो निशान तक नहीं है। उसके बाद हम उस लीफ में अभी आयोडीन डालेंगे, उसको कहा जाता है आयोडीन टेस्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आयोडीन टेस्ट क्या होता है। अभी हम देखेंगे जब आयोडीन टेस्ट किया हमने, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो जिस पार्ट में, जिस हिस्से में लीफ का क्लोरोफिल था, उस हिस्से का जो कलर था ब्लू ब्लैक हो गया। लेकिन जिस हिस्से में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं था, उस हिस्से में ब्लू ब्लैक कलर डेवलप नहीं हुआ। तो आयोडीन कब ब्लू ब्लैक कलर डेवलप करता है, जब स्टार्च के साथ मिक्स होता है। इसका मतलब है कि क्लोरोफिल जिस जगह पर था उसी जगह पर स्टार्च सिंथेसिस हुआ था, स्टार्च बन गया था। इसीलिए हमने जब आयोडीन ऐड किया क्लोरोफिल निकाल लेने के बाद, तो उस जगह पर आपका ब्लू ब्लैक कलर आया, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट स्टार्च सिंथेसिस के लिए जरूरत है। लेकिन दूसरे जगह पर जहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं था, वहां पर भी हमने आयोडीन ऐड किया, लेकिन आयोडीन ऐड करने से उस हिस्सों में ब्लू ब्लैक कलर डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब उस जगह पर स्टार्च का सिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। So this is the experiment to prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis. अभी हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, आपको मैं दिखा दूं। दिस इज कॉल्ड वेरीगेटेड लीफ। आप देखो ये एक लीफ है जिसमें कि कुछ हिस्सों पर ग्रीन कलर है, ग्रीन पैचेस आर देयर। सो ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका येलो कलर है जहां पर ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने इसका स्टार्च टेस्ट करने के बाद जो मैंने जो प्रोसीजर बताया, उस प्रोसीजर करने के बाद देखा गया कि ब्लू ब्लैक कलर कहां पर है, आप देख सकते हो जहां ग्रीन कलर था वहां पर ब्लू ब्लैक कलर है, यानी जहां क्लोरोफिल पिगमेंट था वहां पर स्टार्च सिंथेसिस हुआ, और जहां येलो कलर था वहां पर स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुआ, इसलिए आयोडीन टेस्ट से ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। ओके, अभी हम दूसरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का दूसरा रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हमको ये एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने हमको पता किया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका भी प्रोसीजर हम अभी डिस्कस करेंगे। डिस्चार्ज 2 पॉटेड प्लांट, 2 पॉटेड प्लांट लेना है, उसको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज कैसे करना है मैं आपको प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में बता चुकी हूँ। उसको अंधेरे में रखना है 3-4 दिन तक, वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद पुट दिस पॉटेड प्लांट्स इनटू बेल जार। बेल जार क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बेल जार, बेल शेप का जार होता है। तो ये बेल जार में हमको रखना है 2 पॉटेड प्लांट को डिस्चार्ज करने के बाद। एक बेल जार के अंदर एक पॉटेड प्लांट के साथ हम क्या रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड अदर इज विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जैसे मैं पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, ये है डिस्चार्ज प्लांट जिसमें कि स्टार्च नहीं है, हम अंधेरे में 3-4 दिन तक रख चुके हैं, और दोनों प्लांट को हमने बेल जार के अंदर रखा, और एक पॉटेड प्लांट के पास हमने क्या रखा, एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, और दूसरे पॉटेड प्लांट के पास हमने कुछ नहीं रखा। उसके बाद हम दोनों प्लांट अलोंग विद द बेल जार हमने क्या किया, उसको सनलाइट के अंदर रख दिया। तो अभी क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम क्यों रखते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम है कि सारे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना। तो अभी बेल जार से इसको ढक दिए
प्लांट को इसलिए कि उस बेल जार के थ्रू लाइट अंदर जा सके ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। दूसरा है कि बेल जार से ढक देने से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड बेल जार के अंदर नहीं जा पाएगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिस पॉटेड प्लांट के साथ था, उस जार के अंदर से जितने सारे कार्बन डाइऑक्साइड थे उसको सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। आफ्टर 3-4 hours डू आयोडीन टेस्ट ऑन द लीव्स ऑफ बोथ जार। तो अभी हम क्या करेंगे, 3-4 hours तक बेल जार के साथ, बेल जार के अंदर पॉटेड प्लांट को हमने सन रे के नीचे रखा, सनलाइट के नीचे रखा। उसके बाद हम अभी आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे करना है, ठीक है। अभी आयोडीन टेस्ट के बाद व्हाट ऑब्जर्वेशन वी आर गेटिंग, हम देखेंगे कि leaf of plant with potassium hydroxide solution does not turn to blue black, showing that no starch is present in this leaf. जो प्लांट के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, उस प्लांट का लीफ को जब हमने आयोडीन टेस्ट करवाया तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब उस प्लांट का लीफ में स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुआ। और स्टार्च कब सिंथेसिस होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब जिस पॉटेड प्लांट के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, उस पॉटेड प्लांट का लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। On the other hand, the leaf of the plant with no potassium hydroxide solution turns to blue black, showing that starch is present in that leaf. तो जिस पॉटेड प्लांट के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, उसको जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो देखा गया कि उसका जो लीफ है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब उसमें स्टार्च सिंथेसिस हुआ है, और स्टार्च सिंथेसिस हुआ मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमने फर्स्ट पॉटेड प्लांट से हमने क्या रिमूव किया था, बेल जार से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया था, लेकिन लाइट तो था, वाटर भी था, सब कुछ था। दूसरे में हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं किया था। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, क्योंकि हमने फर्स्ट जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिए थे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन सारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया था, तो उसके अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। लेकिन दूसरे पॉटेड प्लांट के साथ कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था, इसीलिए उसमें फोटोसिंथेसिस हो पाया। तो इससे हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। So I hope this experiment is also clear to you. Then we'll discuss the experiment by Joseph Priestley. In 1770, after a series of experiments, Joseph Priestley came to a conclusion regarding the essentiality of air for photosynthesis and also for the growth of the plant. Joseph Priestley ने एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे ये पता चलता है कि एयर फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत है। एयर मतलब एयर का मेन कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और ये फोटोसिंथेसिस से जो इसमें ये प्रूव कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कैन रिलीज ऑक्सीजन व्हिच सपोर्ट्स द सर्वाइवल ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ मटेरियल्स उन्होंने क्या लिया था, एक बेल जार, कैंडल, रैट एंड ए प्लांट। अभी हम एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था, स्टेप्स देखेंगे। प्रिस्टले केप्ट ए बर्निंग कैंडल एंड ए रैट टुगेदर इन द सिंगल बेल जार। उन्होंने पहले क्या किया, एक बर्निंग कैंडल को और रैट को एक बेल जार के अंदर रख दिया। तो बेल जार के अंदर रख देने से क्या होता है, बाहर से एयर अंदर नहीं जा पाएगा। तो हम यहाँ क्या प्रूव करना चाहते हैं, एयर का इंपॉर्टेंस। अंदर जो एयर था
अंदर पहले से कुछ एयर था, उस एयर में सारे कंस्टिट्यूएंट थे, ऑक्सीजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था। तो अभी आफ्टर सम टाइम क्या देखा गया, कैंडल एक्सटिंग्विश्ड एंड द रैट डाइड। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला बेल जार में रैट मर गया और कैंडल भी बुझ चुका है। ठीक है, अभी हम देखेंगे फॉर द सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, ही केप्ट ए बर्निंग कैंडल, रैट एंड ए ग्रीन प्लांट टुगेदर इन द बेल जार। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, उन्होंने क्या रखा, बर्निंग कैंडल रखा, फिर रैट रखा, फिर एक ग्रीन प्लांट रख दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि neither the candle got extinguished nor did the rat die। जैसे पहले केस में प्लांट नहीं होने की वजह से रैट भी मर गया और आपका कैंडल भी बुझ गया, लेकिन अभी सेकेंड केस में जब उन्होंने एक ग्रीन प्लांट रख दिया तो ना तो कैंडल बुझा ना ही रैट मरा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, he concluded that in the first case the air in the bell jar got polluted by the candle and the rat। उन्होंने कहा कि फर्स्ट बेल जार के अंदर दोनों ही रैट मर गया और आपका कैंडल बुझ गया, इसलिए क्योंकि वहां एयर पोल्यूटेड हो गया। बट सेकेंड केस में क्योंकि ग्रीन प्लांट था तो उसके अंदर एयर पोल्यूशन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ग्रीन प्लांट हमको प्योर या एयर यानी पोल्यूटेड एयर को क्लीन करने में हेल्प करता है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ ये डायग्राम से। आप देख सकते हो कि पहले वाले में ये रैट और कैंडल कैसे इसको पोल्यूट करते हैं, इसके अंदर जो एयर था। अब देखो रैट रेस्पायर करता है, तो रैट रेस्पिरेशन के लिए रैट का क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अभी कैंडल जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अभी दोनों ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही रिलीज कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद पूरे जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप से यूज किया जाता है। तो इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया एयर में, मतलब एयर पोल्यूट हो गया और इसके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बचा रैट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए रैट मर गया और कैंडल भी बुझ गया क्योंकि कैंडल को भी जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहा। बट दूसरे केस में जब हमने ग्रीन प्लांट रख दिया तो हमने क्या देखा कि इसमें बराबर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, फिर ग्रीन प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर दे रहा है। फिर फोटोसिंथेसिस के बाद क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और वही ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है फॉर द रैट एंड द कैंडल टू बर्न एंड टू रेस्पायर। ठीक है, इसीलिए तीनों के तीनों जिंदा रहे और इससे हमको पता चलता है कि एयर का प्यूरिफिकेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए एयर का किस तरह जरूरत होती है। There are several other experiments also conducted by other scientists. So just I am giving a glimpse of this. Followed by Priestley, Jan Ingenhouse conducted experiments using the same setup and showed that sunlight is essential for plants to reinstate the air that was spoiled by the candle or rat. Jean Senevier demonstrated that plants absorb carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis. Julius Robert Mayer proposed that plants convert light energy into chemical energy, जो कि हमने आपको बताया था रेडिएंट एनर्जी फूड में कन्वर्ट हो जाता है। फूड इज नथिंग बट योर केमिकल एनर्जी। Later the experiment by Julius von Sack revealed that glucose was produced by plants. Then T.W. Engelmann discovered the role of chlorophyll and Cornelius Van Zyl
uncovered that the release of oxygen by plant is from water, not from carbon dioxide. ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, अक्सर हम क्या सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो ऑक्सीजन जरूर कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिलीज हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। TW एंजेलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो वाटर से रिलीज होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। By the mid-19th century, scientists outlined the process of photosynthesis and they concluded that light is essential for photosynthesis and plant use carbon dioxide and water for the preparation of glucose, where water molecules are the hydrogen donors and oxygen is the byproduct of this biological process. So mid-19th century तक पूरे सारे डिस्कवरी हो चुके थे फोटोसिंथेसिस का, इसलिए साइंटिस्ट ने एक आउटलाइन दे दिया किस तरह फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है और क्या क्या आउटपुट है। तो बच्चों ये था कुछ एक्सपेरिमेंट्स और फोटोसिंथेसिस का जो इंट्रोडक्शन था। आप तो पहले से जान चुके हो फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा डेप्थ में हम पढ़ेंगे, और मैं यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दे रही हूँ, ओनली दोज पॉइंट्स व्हिच आर इन योर एनसीईआरटी बुक दैट ओनली आई एम गिविंग यू एंड दैट इज एनफ फॉर योर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस, और ये अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू once again।